सांची क्लियर है? देखो Yes, ma'am. और बोलो थर्ड। Yes, ma'am. Ma'am, उसमें money created by bank is 500 ठीक है, और legal reserve ratio 20%. और निकालना क्या है? Primary deposit. गिवन टीडी कितना गिवन था? 500. बस सेम फॉर्मूला। ठीक है सांची? मैम इसका 100 नहीं आ रहा। फिर तुमने मुझे क्वेश्चन ठीक बोला है? मैम LRR 20%, आपने 25। Oh sorry, I took it 25%. ठीक है, अब तो आगे it is 5 then it is 100. ठीक है बेटा, और बोलो। नहीं बस। बस एनी अदर डाउट बेटा? किसी को और कोई डाउट तो नहीं है बच्चों? चले आगे। यस मैम। चलो फिर एक बारी क्रेडिट क्रिएशन लिख लो, क्योंकि फिर तुम्हारा कमर्शियल बैंक वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा एंड देन नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद सेंट्रल बैंक। बच्चों लिखो क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस बाय कमर्शियल बैंक। क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस बाय कमर्शियल बैंक्स। देखो द कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक टू क्रिएट क्रेडिट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। Declare the capacity of commercial bank to create credit depends on two factors. First is primary deposit and second is LRR, legal reserve ratio. Primary deposit and LRR. लिख लिया बच्चों? यस मैम। Okay, first लिखो primary deposit, amount of initial fresh deposit, amount of initial fresh deposit which is held by households and firms ये लिखो which is deposited by household and firms। बच्चों थोड़ा सा चेंज कर लेना, which is deposited by household and firms held by a bank is called primary deposit। लिख लिया बच्चों फर्स्ट लाइन?
Yes, we are done. Yes, ma'am. Next लिखो LRR. It is the fraction of deposit of commercial bank It is a fraction of deposit of commercial bank which is legally compulsory for them, to keep in the form of CRR and SLR, or you can also write in the form of cash and liquid assets. कैश में लिख सकते हो CRR और LRR में लिख सकते हो सॉरी लिक्विड एसेट्स में लिख सकते हो SLR. In the form of cash and liquid assets as a reserve. लिख लिया बच्चों? Yes, ma'am. अब इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखो LRR determines the limit to create credit by commercial bank and there is a need to hold this reserve in order to enable commercial bank to meet the demand for withdrawals from the depositors. Done बच्चों? मैम सेकंड पॉइंट एक बार रिपीट करना. और क्या लिखवाया था मैंने? खुद ही डिक्टेट किया था पॉइंट. LRR determines the credit limit to create credit by commercial bank. आगे क्या लिखवाया था बच्चों? Which they need Ma'am, to and there is need to hold this reserve in order to enable commercial bank. साची meet कहाँ the से भी लिखा demand. हुआ? मैम लिख लिया, यही लाइन नहीं लिखी थी बस. देयर इज नीड वाली. Okay. यस मैम. बच्चों नेक्स्ट लाइन में लिखना है मीन तुमने सब पॉइंट्स बनाने हैं सारे. The credit or deposit
the credit or deposit created by the commercial banks, the credit and deposit or deposit created by the commercial bank are called as derivative deposit. Are called as derivative deposit. And a bank cannot lend money more than primary deposit. लिख लिया बच्चों? Yes, ma'am. अब नेक्स्ट एक बॉक्स बना के फॉर्मूला लिखो. टोटल मनी क्रिएशन इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट इनटू 1 by LRR. फॉर्मूला लिखो टोटल डिपॉजिट का. लिख लिया? मैम रिपीट करना एक बार. Yes, ma'am. Total money creation is equal to initial deposit or primary deposit into 1 by LRR. ओके मैम. Done बच्चों? Yes, ma'am. Next लिखो. Let us explain the process. Let us explain the process of credit creation by an example. फिर नेक्स्ट लिखो. सपोज कैश रिजर्व इज इक्वल टू 20%. Cash reserve is equal to 20%. Primary deposit is equal to 1000. Primary deposit is equal to 1000. लिख लिया बच्चों? Yes, ma'am. नेक्स्ट हेडिंग लिखो. स्टेप्स ऑफ वर्किंग. स्टेप्स ऑफ वर्किंग का फर्स्ट पॉइंट लिखो. Assuming PD in a bank. Assuming PD means primary deposit in a bank is rupees 1000. लिख लिया बच्चों? Yes, ma'am. सेकेंड पॉइंट लिखो. मिनिमम रिजर्व रिक्वायरमेंट
minimum reserve requirement is assumed to be 20%. Minimum reserve requirement is assumed to be 20%. अब थर्ड पॉइंट में लिखो टोटल मनी क्रिएटेड, फॉर्मूला लगाओ और टोटल मनी निकालो. मैम 10,000। 10,000 लिखना. 5,000। मैम नहीं 5,000, वो 2 से डिवाइड करके 10,000 को। कोई बात नहीं, 5,000 आएगा बेटा आंसर. अच्छा इसी में अब एक लाइन और लिख लो. 1/LRR, 1/LRR is also called as money or deposit multiplier. 1/LRR is also called as money or deposit multiplier. लिख लिया बच्चों. इसी के आगे लिखो which means it is a multiple by which total deposit increases due to primary deposit. See, everybody knows this. Primary deposit and initial deposit both are the same. So sometimes I can use initial, sometimes primary. लिख लिया बच्चों. यस मैम। Yes, ma'am. अब फोर्थ पॉइंट में लिखो how this happens. लिखो the bank will keep 20% of 1,000 20% of 1,000 to meet any demand of the depositor and lend the remaining 800 as a loan. लिख लिया. यस मैम। इसी में अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो borrowers will use this money which will again come to the banking system which will again come to the banking system
in the forms of checks, drawn on bank. Done बच्चों? Next Yes, लिखो. ma'am. Now rupees 800. Now rupees 800 will be derivative deposit. Will be derivative deposit again. Bank will keep 20%. Again, bank will keep 20% of 800 in reserve. And lend rupees 640 to the borrower. लिख लिया बच्चों? Yes, ma'am. अब नेक्स्ट लाइन में लिखो 640 will be next derivative deposit. 640 will be next derivative deposit. Again, bank will keep 20% of 640 in reserve. Again, bank will keep 20% of 640 in reserves and lend out कितना हो गया 640 का 80%, ये हो गया तुम्हारा 512 है ना 512. हाँ. And lend out remaining rupees 512 to borrowers. लिख लिया? Yes, ma'am. नेक्स्ट लाइन में लिखो so in every round 80% of derivative deposit go in creation of credit. 80% of derivative deposit go in creation of credit and 20% in reserve. Next line में लिखो the process continues till the primary deposit
of rupees 1000 is completely exhausted, is completely exhausted, अब टेबल बनाओ बच्चों, 4 कॉलम्स में बाइफरकेट करो टेबल को, राउंड ऑफ ट्रांजैक्शंस, डिपॉजिट, लीगल रिजर्व, लोन। एक टेबल बनाओ, 4 कॉलम्स में बाइफरकेशन करो, राउंड ऑफ ट्रांजैक्शंस, डिपॉजिट, लीगल रिजर्व एंड लोन्स। राउंड्स में लिखो फर्स्ट राउंड, ये टेबल भी शो करना है हमने। फर्स्ट राउंड में लिखो डिपॉजिट में 1000, एलआर में 200, लोन में 800। फिर तुम लोगों को पता है कैसे करना है, जल्दी से डिवाइड करो इसे सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड में। देन 800 आएगा डिपॉजिट में सेकंड राउंड में, 160 आ गया तुम्हारा एलआर में और 640 आ गया लोन में। कर लोगे थर्ड राउंड की डिवीजन? यस मैम। हाँ, थर्ड फोर्थ राउंड तक इसे शो कर दो, उसके बाद डैश डैश कर देना और तीनों का टोटल लिख देना कि डिपॉजिट टोटल कितना होगा, लीगल रिजर्व कितना होगा, लोन कितना होगा। कितना आएगा डिपॉजिट के टोटल में? 5000, हाँ 5000। लीगल रिजर्व में 5000 का 20% 1000 और लोन में फिर 4000 बचा हो। कर लिया बच्चों, टेबल क्लोज कर दिया? यस मैम। अच्छा अब लास्ट लिख लो। We conclude that if LRR is higher, lower will be the credit creation, and vice versa कर लेना, इसका उल्टा लिख लो। लिख लिया बच्चों कंप्लीट? यस मैम। बस अब ये पूरा प्रोसेस जितना तुम्हें लिखवाया है ये सारा तुम लोगों ने लिखना है जब तुम्हारा क्रेडिट क्रिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, और ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। So it's done now. Let's start with central bank.
कहाँ गए 2-3 बच्चे, कौन कौन नहीं है? बलप्रीत ने तो जाना ही था, नवनीत नहीं है, दर्शप्रीत तो है, अक्षय नहीं है। देखना बोर्ड विजिबल है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके बेटा, बच्चों सेंट्रल बैंक कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक के जो फंक्शंस है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मींस कमर्शियल बैंक के जो फंक्शंस है वो रेयरली आस्क्ड है, बट सेंट्रल बैंक के फंक्शंस आते ही आते हैं। Now we have already discussed we have two type of banks. One is commercial and other is central bank. What is central bank? Can anybody tell me what is central bank? You all know in India. RBI. Central. RBI. We know RBI, Central Bank of the India. What does it do? Ma'am, issues currency. Issues. Okay, issues currency. What else? वो इशू करेंसी तुम लोगों को सबको पता लग गया होगा, बिकॉज तुम लोगों ने स्कूल में भी किया है, मे बी कुछ स्टूडेंट्स ने 11th में भी किया है। तो इश्यूज करेंसी। एनी अदर फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक? Ma'am, it advises the government regarding economic policy decisions. स्पीक अगेन निशिका। Ma'am, it also advises the government regarding the economic policy decisions. ऑल राइट। और बस Ma'am, like RBI जो है, it has it functions for the public, same जो जैसे commercial bank है, it functions for the public, same RBI functions for commercial bank. okay. So it means whatever commercial bank is performing with the public, same is performed by the RBI for commercial banks. Yes, ma'am, kind of. Okay, let's discuss it. Central bank. सबसे पहले, it is an apex institution in a country that regulates and controls the monetary and credit system of the country. ठीक है, एक बार रीड करते हैं, टॉपिक में डिक्टेट कर दूंगी, लिखेंगे बाद में, डू नॉट राइट एनीथिंग। इट इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन। बच्चों एपेक्स क्या होता है? व्हाट इज एपेक्स? एनीबॉडी नोज इट? व्हाट इज एपेक्स? In simple terms, apex means the uppermost, topmost, right? So central bank है क्या एक्चुअली बच्चों? ये एक इंस्टीट्यूशन है किसी भी कंट्री के अंदर जो कि कंट्रोल करता है। सेंट्रल बैंक का मेन काम क्या है? मनी को रेगुलेट करना, मनी सप्लाई देखना। तो कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग all the monetary and credit transactions in the country. कंट्री के अंदर जितना भी मॉनेटरी सिस्टम है, क्रेडिट फैसिलिटीज है, मनी सप्लाई है, everything is controlled by, regulated by central bank in any country, not in India, in any country. Is it clear? What is central bank? Yes, please, you can read the definition. Clear है बच्चों? What is central bank? Yes. Yes, ma'am. ma'am. Okay. आप देखो कुछ सेंट्रल बैंक्स बता रही हूँ कब कब सेट हुए थे, एमसीक्यूज के लिए से याद रखना, लिखवा दूंगी बाद में। तो हमेशा याद रखना सेंट्रल बैंक का जो फंक्शन है वो यही है कि
मॉनेटरी और क्रेडिट सिस्टम को कंट्रोल करना, जो कि कमर्शियल बैंक्स नहीं करते हैं, सेंट्रल बैंक करता है. कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं, इट डील्स विद द पब्लिक, बट सेंट्रल बैंक्स नेवर डील विद द पब्लिक. So first we have the Vikas Bank of Sweden. ये स्टैब्लिश हुआ था 1656 में. ये कुछ सेंट्रल बैंक्स हैं, उनके नाम है. जैसे हमारे इंडिया में सेंट्रल बैंक को क्या बोलते हैं? आरबीआई. एवरीबॉडी नोज दिस. अब स्वीडन का जो बैंक था आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक. इट इज द विकास बैंक ऑफ स्वीडन. 1656 में ये स्टैब्लिश किया गया था. सेकंड है आपके पास बैंक ऑफ इंग्लैंड. ये आपका स्टैब्लिश हुआ था 1694 में, बट इसकी जो फंक्शनिंग है वो स्टार्ट हुई थी 1882 में. देन वी हैव फेडरल रिजर्व सिस्टम. इन यूएसए 1913 में. एंड द लास्ट आरबीआई. आरबीआई कब स्टैब्लिश हुआ था बच्चों, पता है किसी को? आरबीआई कब स्टैब्लिश हुआ था? 1935. ये याद रखना, एमसीक्यू का क्वेश्चन आ सकता है. आरबीआई का स्टैब्लिश ईयर, इसे नोट कर लो चाहे अभी. सारे सेंट्रल बैंक्स हैं ये, जो इंपॉर्टेंट सेंट्रल बैंक्स हैं. अब सारी कंट्री का तो याद नहीं करना, बट जो मेन है जिनकी स्टैब्लिशमेंट सबसे पहले हुई थी, तो ये कुछ 4 कंट्रीज है, उनके नाम याद कर लेना सेंट्रल बैंक के, क्योंकि इसमें बेस्ड एमसीक्यू आ सकता है आपको. Excuse me, ma'am. Ma'am, ये dictate करना. Vikas Bank of Sweden, Ishika, 1656. What is not visible to you? मैम एक्चुअली मेरा नेटवर्क ना लो दिखा रहा है. अच्छा, ग्रुप पे सेंड कर दूं? मैम मर्जी, अगर आप डिक्टेट करना चाहते हो वो भी कर सकते. कोई बात नहीं, लिखो फिर. इट इज रिकास, RIKAS. रिकास बैंक ऑफ स्वीडन 1656 में स्टैब्लिश हुआ था बेटा ये. यस मैम. नेक्स्ट लिखो बैंक ऑफ इंग्लैंड. बैंक ऑफ इंग्लैंड 1694 में स्टैब्लिश हुआ था, बट इट स्टार्टेड फंक्शनिंग इन 1882. इसका जो फंक्शन स्टार्ट हुआ था वो 1882 में हुआ था. देन थर्ड वी यस हैव मैम. फेडरल रिजर्व सिस्टम. फेडरल रिजर्व सिस्टम इन यूएसए. in USA in 1913, 1913. Yes, ma'am. And the last is our RBI 1935. RBI का ईयर याद रखना बच्चों, कई बार एमसीक्यू आता है इस पे. 1935 RBI एस्टैब्लिश हुआ था. डन बच्चों, नोट कर लिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Next is what are the features of central bank? Sometimes तुम्हें आता है कि सेंट्रल बैंक एक्सप्लेन करो, इंडिया के सेंट्रल बैंक का नाम क्या है और इसके फीचर्स क्या है. तो सिर्फ हम लोग इंडिया के फीचर्स मींस जो सेंट्रल बैंक है, हर सेंट्रल बैंक का सेम ही फीचर है. बट राइट नाउ हम लोग जो है आरबीआई का डिस्कस कर रहे हैं. सो फीचर्स, अभी देखो, बाय द डेफिनेशन वी गॉट वन फीचर. क्या था बोलो? It regulates and controls money supply or credit facility in the country.
ये कैसा इंस्टीट्यूशन है? एपेक्स इंस्टीट्यूशन, टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है कंट्री का। बच्चों, I told you central bank deals with the public or not? No, ma'am. No. So it does not deal with the public. Who deals with the public? Commercial bank. Commercial bank. Commercial banks. अब जो भी सेंट्रल बैंक है, it functions for the welfare of the country. जितनी भी कंट्री का वेलफेयर है वो कौन डील करता है? सेंट्रल बैंक. So it functions for the welfare of the country. And central bank has the right to issue currency in the country. So this is the main feature of the central bank. It has exclusive right to issue currency. So these are the features of central bank. If you want, you can write. Otherwise, I'll dictate all the terms. हाँ इशिका dictate करो. Ma'am, fourth. It functions for the welfare of the country. It has exclusive. Next, it has exclusive right to issue currency. Yes, ma'am. Okay. Now next is functions of central bank. Very important. कोई भी एक function आ जाता है 3 to 4 mark में. So you have to remember all the functions of the central bank. First is currency authority. जिसे हम बैंक ऑफ इश्यू भी बोलते हैं. Second is banker to government. Third is bankers bank and supervisor. Fourth is control of credit. Fifth is custodian of foreign exchange reserve. Right, these are the functions of the bank. Just read them. Currency authority, banker to government, bankers bank and supervisor, control of credit, custodian of foreign exchange reserve. कर लिया बच्चों? पढ़ लिया बच्चों? नोट कर लिया? Yes. Okay. So let's discuss the first function, that is currency authority, bank of issue. See, each and every function is very important. Listen to me very carefully.
अभी इसमें लिखना मत कुछ भी, जस्ट लिसन। सी करेंसी अथॉरिटी बैंक ऑफ इशू। अब तुम सबको पता है कि बैंक ऑफ इशू का मतलब कि इन इंडिया सेंट्रल बैंक द आरबीआई हैज द सोल अथॉरिटी टू इशू करेंसी, राइट। तो बैंक ऑफ इशू का मतलब क्या होता है बच्चों? ये वो बैंक है जहां पे जिसे राइट है, एक्सक्लूसिव राइट है, हमने पहले भी पढ़ा ना कि सेंट्रल बैंक का एक्सक्लूसिव राइट है जो कि क्या करता है, करेंसी को इशू करता है कंट्री के अंदर। तो सोल अथॉरिटी है इसकी। अच्छा, कौन सा डिनोमिनेशन है जो कि सेंट्रल बैंक इशू नहीं करता? बोलो। 1 rupee note. यस, एक्सेप्ट नोट एंड कॉइन्स ऑफ 1। ये डिनोमिनेशंस जो है सेंट्रल बैंक इशू नहीं करता। और बैंक ऑफ इशू का मतलब ये है कि जो करेंसी इशू करता है कंट्री के अंदर। ये राइट किसके पास है बच्चों? Ministry of Finance. तुम में से किसी को ये पता है कि जो सारी डिनोमिनेशंस तो आरबीआई इशू कर रहा है, तो फिर 1 रुपी क्यों नहीं इशू करता वो? तुम सब ये याद तो कर लेते हो कि हाँ भाई वो 1 रुपी का नोट इशू नहीं करता है, उसको राइट नहीं है, फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो इसको इशू करती है। तो जब गवर्नमेंट ने सारे डिनोमिनेशंस का राइट दिया हुआ है तो ये राइट क्यों नहीं दिया हुआ? नहीं, nobody knows the answer. मैम रिपीट करना एक बार। I asked you, Sachi, कि government has given all the rights, means all the issue rights to RBI except note and coins of 1. Why so? मतलब गवर्नमेंट ने ये राइट क्यों नहीं दिया हुआ आरबीआई को? पता नहीं। क्वेश्चन तो ऐसे रिपीट करवाया था क्योंकि आंसर देखिए है। मैम मेरा नेट स्लो था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। देखो बच्चों, इसका एक सिंपल सा रीजन है। जो 1 रुपी का कॉइन और नोट है ना, वो हमारी गवर्नमेंट का एक एसेट है। क्या है ये? एक एसेट है। और एसेट, तुम सबको एसेट पता है ना क्या होता है? आई थिंक यू ऑल आर कॉमर्स स्टूडेंट्स, सबको पता है एसेट क्या होता है। इसका एसेट तो तुमने भी डिस्कस किया होगा, Yes, ma'am. है ना। तो ये गवर्नमेंट का एसेट है। ये माना जाता है कि जो 1 रुपी का नोट और कॉइन है वो गवर्नमेंट का एसेट है। एसेट जो है वो गवर्नमेंट की खुद की प्रॉपर्टी है, इसीलिए वो राइट उसने बैंकिंग सिस्टम को भी नहीं दिया होगा। समझ आया? एक रीजन याद रखना, कभी पूछा नहीं जाता कि ये क्यों ऐसा राइट नहीं दिया हुआ। जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आई एम टेलिंग यू कि दिस इज द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। नोट एंड कॉइन्स ऑफ ₹1, दिस इज द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। और एसेट इशू करने का राइट गवर्नमेंट ने किसी को नहीं दिया हुआ, किसी बैंकिंग सिस्टम को नहीं दिया हुआ। क्लियर है बच्चों? यस प्लीज। मैम बेटा इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है। अगर हम इसकी डिटेल में Okay. हाँ हाँ इशिका बोलो, व्हाट डू यू मैम वांट टू यही आस्क? पूछना था मुझे कि 1 rupee note asset मतलब क्या रिलेशन है? फिर आपने कहा चलो डिटेल में नहीं जाना। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। इशिका, हम लोग कहते हैं, तुमने कभी सुना है कि हमारे घर में, चलो एक घर का एग्जांपल लेते हैं। तुम किसी घर में रह रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे आगे के जितने भी जो तुम्हारी जनरेशंस थी वो उसी घर को यूज कर रहे हैं। तो ये कहते हैं जी हमारे ये पूर्वजों का घर है, हम ये किसी को नहीं देंगे। होता है ऐसा कि नहीं होता? बाकी तुम कार ले लेते हो, कहीं और अलग घर ले लेते हो, कोई भी एसेट परचेज कर लेते हो, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है हर किसी के लिए जिसका राइट हम किसी को प्रोवाइड नहीं करते। होता है ऐसा? Yes, ma'am. Okay. सेम वे गवर्नमेंट के लिए जब ये नोट और कॉइन्स इशू किए गए थे वो उनके एसेट्स थे। अगर वो किसी बाहर से इशू करवाएंगे, मींस आरबीआई बाहर वाला हो गया, तो वो उनकी लायबिलिटी मानी जाती है। तो मैं तभी कह रही थी तुम्हें कि बहुत ज्यादा डिटेल वाला टॉपिक है, ऑल्दो मुझे टॉपिक छेड़ना ही नहीं चाहिए था, लेकिन जस्ट फॉर नॉलेज याद रखना कि ये एसेट है और उसका राइट किसी को नहीं दिया हुआ। अगर ये बाहर से कहीं से कराते हैं, इसको इशू कराते हैं, तो मतलब गवर्नमेंट की वो लायबिलिटी मानी जाती है, फिर वो उसका एसेट कंसिडरेशन वाला पॉइंट नहीं रहता। क्लियर है?
Yeah. चले आगे, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे इस टॉपिक के, मतलब किससे भी इस पॉइंट के ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, बाकी ये टॉपिक समझाती हूँ आगे है क्या। ठीक है बच्चों, कोई डाउट तो नहीं ना? No, ma'am. No, ma'am. अब देखो नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे गवर्नमेंट जो है बैंक ऑफ इशू, मतलब इसको करेंसी अथॉरिटी का राइट क्यों दिया गया है और किस तरह से ये इशू कराया जाता है। देखो देयर इज अ वर्ड डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब मुझे बताओ डेफिसिट का मतलब सबको पता है, व्हाट इज डेफिसिट? Yes, ma'am. डेफिसिट का मतलब होता है जहां पे कमी आना, है ना, देयर इज अ लैग पॉइंट, तो यहाँ पे क्या आ रही है, कमी आ रही है। Expenditure is more than the हाँ, so revenue. where expenditures, government expenditures are more than its income, revenue से ज्यादा expenditures है। तो गवर्नमेंट ये क्राइसिस मोस्टली एवरी ईयर फेस करती है, जहाँ पे एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, रेवेन्यू कम होता है। ये डेफिसिट फाइनेंसिंग, अब फाइनेंस देना, डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब डेफिसिट को पूरा करने के लिए, कमी को पूरा करने के लिए फाइनेंस देना। ये फाइनेंस जो है गवर्नमेंट को कौन देता है? आरबीआई। ठीक है, गवर्नमेंट को ये फाइनेंस पूरा कौन करता है? आरबीआई। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग का जो एक्चुअल मतलब होता है वो होता है इशू ऑफ न्यू करेंसी, इशू ऑफ न्यू और मोर करेंसी, right? Point to understand is this, there is a word deficit financing, deficit means expenditures are more than revenue। अब गवर्नमेंट का क्या हाल है, गवर्नमेंट को पता है भाई मेरे खर्चे ज्यादा आ गए, इनकम कम आ रही है, किसको अप्रोच करेगा? आरबीआई को। गवर्नमेंट किसको अप्रोच करेगी? आरबीआई को। आरबीआई क्या करती है, गवर्नमेंट कहती है आई हैव डेफिसिट फाइनेंसिंग, मींस आरबीआई के लिए आरबीआई हैज टू इशू न्यू और मोर करेंसी टू द गवर्नमेंट, मींस सर्कुलेशन चाहिए इकोनॉमी के अंदर, आपको और मनी सप्लाई करना है, मनी सप्लाई का मतलब न्यू करेंसी इशू करनी है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? दिस लाइन इज क्लियर? why there is a Yes, need of, ma'am. means why it is considered as bank of issue। अब नेक्स्ट क्या है, ये जो फाइनेंसिंग प्रोसेस है बेसिकली ये कैसे होता है? डेफिसिट फाइनेंसिंग, अब आरबीआई कहेगी कि आपको फ्री में तो हम करेंसी इशू कर नहीं सकते हैं, तो इन दैट केस गवर्नमेंट क्या करती है, ये जो न्यू करेंसी लेती है, इस न्यू करेंसी के लिए गवर्नमेंट आरबीआई को अपनी कुछ सिक्योरिटीज देती है। सिक्योरिटीज हो गए, गोल्ड रिजर्व हो गया, ये क्या करती है, एज अ मॉर्गेज आरबीआई को देती है। ठीक है, डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए न्यू करेंसी इशू की जाती है, ये न्यू करेंसी फ्री में नहीं होती, उसके लिए गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज जो है, गोल्ड रिजर्व जो है वो किसको देती है? आरबीआई को, फिर आरबीआई ये न्यू करेंसी इसको देती है। नाउ देयर इज टू काइंड ऑफ लायबिलिटी अराइजेस हियर। दिस लाइन इज क्लियर बच्चों? क्योंकि बैंक ऑफ इशू तुम्हें ना सिर्फ यही लगता है कि बैंक ऑफ इशू इज व्हाट, नई करेंसी को इशू करना, दैट्स इट, बैंक ऑफ इशू इज दिस ओनली, कि आरबीआई के पास राइट है, सोल अथॉरिटी है, इशू कर दो पैसा, और कुछ नहीं है। बट एक्चुअल जो प्रोसेस है वो ये है कि ये बैंक ऑफ इशू क्यों अराइज होता है बार बार। तो यहाँ पे डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है, डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए गवर्नमेंट फिर से अप्रोच करता है आरबीआई को, आरबीआई न्यू करेंसी इशू करती है डेफिसिट फाइनेंसिंग को पूरा करने के लिए, और वो फ्री में नहीं होगा, इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन सम सिक्योरिटीज एंड गोल्ड रिजर्व बाय द गवर्नमेंट। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? चलो आगे। Yes, ma'am. नाउ इन बोथ, ये जो प्रोसेस है डेफिसिट फाइनेंसिंग का, बोथ विल फेस काइंड ऑफ लायबिलिटीज। नाउ व्हाट आर द लायबिलिटीज? टू टाइप की लायबिलिटीज अराइज होती है, एक होती है मॉनेटरी लायबिलिटी,
अदर इज नॉन मॉनेटरी लायबिलिटी। अब मॉनेटरी लायबिलिटी किसकी होती है बच्चों? आरबीआई की। और नॉन मॉनेटरी लायबिलिटी किसकी होती है? गवर्नमेंट की। क्यों? आरबीआई मनी टर्म्स में पैसा देती है, राइट? मॉनेटरी मींस मनी टर्म्स में पैसा देना। इश्यू ऑफ न्यू करेंसी का मतलब है वो और करेंसी दे रही है, मतलब पैसा दे रही है। गवर्नमेंट की लायबिलिटी को यहाँ पे हम लोग नॉन मॉनेटरी लायबिलिटी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट गवर्नमेंट भी कर रही है, लेकिन वो पैसों में नहीं कर रही है। किस में कर रही है? अदर लिक्विड एसेट्स, सिक्योरिटीज हो गया, गोल्ड रिजर्व हो गया, उस फॉर्म में गवर्नमेंट आरबीआई को पैसा देती है। लेकिन आरबीआई का रोल क्या है यहाँ पे? आरबीआई हैज टू monetize the debts of the government. मैम ये रिपीट करना। कौन सा टॉपिक है? लायबिलिटीज वाला? यस मैम, जब आपने अभी जैसे कि मॉनेटरी गवर्नमेंट की होती है और सॉरी मॉनेटरी आरबीआई की होती है, नॉन मॉनेटरी तो बात नहीं, मैं पूरा गवर्नमेंट, topic उसके बता- बाद हाँ बच्चों सुनो, मैंने आप लोगों को बोला था कि जो डेफिसिट फाइनेंसिंग का जब प्रोसेस होता है ना, तो उसमें लायबिलिटीज अराइज होती है। लायबिलिटीज मतलब पेमेंट्स करना किसी भी आउटसाइडर को, तो हम लायबिलिटी कहते हैं उसे। अब लायबिलिटीज अराइज होती है। लायबिलिटीज किस फॉर्म में अराइज होती है? दो फॉर्म होती है, एक मॉनेटरी और एक नॉन मॉनेटरी। दो लोग इन्वॉल्व थे ना। देखो हमारा डेफिसिट फाइनेंसिंग का प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के अंदर हमारे दो लोग थे। डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग लिंक है आरबीआई से और लिंक्ड है गवर्नमेंट से। अब इस प्रोसेस के अंदर दोनों ही क्या कर रहे हैं? डेफिसिट फाइनेंसिंग में एक रोल प्ले कर रहे हैं। ये भी दे रहा है और ये भी दे रहा है। ये जो दे रहा है वो मॉनेटरी लायबिलिटी है, ये जो दे रहा है वो नॉन मॉनेटरी लायबिलिटी है। मॉनेटरी लायबिलिटी क्यों? क्योंकि आरबीआई पैसों की टर्म्स में दे रहा है पैसा, ठीक है? करेंसी इशू कर रहा है, ऑब्वियसली पैसे, न्यू करेंसी इशू कर रहा है, पैसे दे रहा है। लेकिन गवर्नमेंट की नॉन मॉनेटरी लायबिलिटी है। नॉन मॉनेटरी मींस पैसों की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यहाँ पे वो लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में दे रहा है, मीन सिक्योरिटीज दे रहा है। पहले भी लिखा था ना मैंने कि सिक्योरिटीज और गोल्ड रिजर्व जो है वो गवर्नमेंट देती है, फ्री में नहीं मिलता ये पैसा, गवर्नमेंट को भी कुछ पे करना पड़ता है। लेकिन आरबीआई जो है वो लायबल होती है, उसे पूरा का पूरा इक्वल अमाउंट देना पड़ता है जितना गवर्नमेंट ने नॉन मॉनेटरी टर्म्स में पे किया होता है। अगर गवर्नमेंट ने 2 करोड़ का गोल्ड दिया है, गोल्ड रिजर्व, तो ये नहीं कि आरबीआई कम पैसा देगी कि भाई गोल्ड रिजर्व दिया। आरबीआई जो है वो लायबल है पूरा का पूरा 2 करोड़, मतलब कैश इन द सेंस की करेंसी में पे कर। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? मैम आरबीआई किसको पे करेगी? गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला आई एम फेसिंग डेफिसिट फाइनेंसिंग, तो मुझे नई करेंसी की जरूरत है। यस मैम। राइट? मैम आरबीआई जो है पहले वो जो मॉनेटरी लायबिलिटी इसलिए क्योंकि मनी टर्म्स में है, मनी टर्म्स में इसलिए क्योंकि उसे न्यू करेंसी इशू, बिल्कुल, उसे न्यू करेंसी इशू करनी है। हाँ, तो ओके इसीलिए उसकी मॉनेटरी है। गवर्नमेंट को राइट ही नहीं है करेंसी इशू करने का, लेकिन उसे कुछ ना कुछ नॉन मॉनेटरी टर्म्स में देना है। मीन सिक्योरिटीज दे सकती है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट गोल्ड रिजर्व दे सकती है। तो मैंने यही एग्जांपल लिया था कि गवर्नमेंट ने बोला मैं आपको अपना गोल्ड रिजर्व 2 करोड़ का दे रहा हूँ, आपने मुझे 2 करोड़ का ही अमाउंट वापस करना। अब आरबीआई यहाँ पे गड़बड़ नहीं कर सकती कि मैं आपको 1.5 करोड़ की करेंसी दे रही हूँ या 1.75 की दे रही हूँ, नॉट पॉसिबल। कहते हैं इक्वल अमाउंट, जितना भी वैल्यू रिजर्व को होता है, सिक्योरिटीज को होता है, इक्वल अमाउंट आरबीआई जो है वो लेंड करती है, वो इशू करती है किसको? गवर्नमेंट को। क्लियर बच्चों? अमाउंट कम यस नहीं। मैम। नाउ मैम अगर हम इसे ना अलग अलग केस में देखें कि सिर्फ आरबीआई के पास नहीं है पैसे, तो आरबीआई के उसे पास तो अलग, है ना बेटा, आरबीआई के पास तो अथॉरिटी है कि उसने तो करेंसी इशू यस करनी ही मैम, करनी। यस मैम मैं आरबीआई वही कह रही हूँ। देगी। और जो गवर्नमेंट है उसको तो आरबीआई से ही लेना पड़ता है लोन, अपनी हाँ, तो सिक्योरिटीज वगैरह सेल करके। बिल्कुल, गवर्नमेंट के पास तो यस देयर इज मैम। नो,
गवर्नमेंट सिर्फ आरबीआई को ही अप्रोच कर सकती है फॉर एनी काइंड ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट मैम फाइनेंसिंग जब आरबीआई न्यू करेंसी इशू करती है अपने लिए, तो अपने लिए मैम नहीं उसको होती बेटा, फिर कुछ पे मतलब गवर्नमेंट के लिए ही होगी, गवर्नमेंट को देने के लिए। हाँ, वो पूरी कंट्री में, पूरी इकोनॉमी में सर्कुलेशन के लिए होती है। दैट इज द मनी यस सप्लाई। मैम। ओके मैम, तो फिर आरबीआई को क्या करना होता है कि बस नहीं सिर्फ करेंसी इशू कर दी काफी है? नहीं, आरबीआई जो है सिर्फ करेंसी इशू करती है, राइट? करेंसी इशू करती है। यस अगर मैम। गवर्नमेंट अप्रोच करती है कि मुझे और फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, तो इन दैट केस गवर्नमेंट की कुछ सिक्योरिटीज आरबीआई को देनी पड़ती हैं। यस मैम। ओके ओके, फाइनेंशियल ठीक है, क्राइसिस के टाइम पे ना। यस मैम। एग्जैक्टली, फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे। नाउ दिस होल प्रोसेस इज नोन एज मोनेटाइजिंग द डेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या है कि जो आरबीआई है वो मोनेटाइज कर रही है, मींस मनी प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट के किसी भी टाइप के उधार के, राइट? सो दिस इज द monetizing the debts of the government in case of any deficit financing. So here we have monetary liability for the RBI and non-monetary liability for the government. ठीक है, अब हम सिंपल सा प्रोसेस याद करते हैं। मैं हूं सेंट्रल बैंक, राइट, आरबीआई, तुम में से कोई भी एक बच्चा गवर्नमेंट है। अब हम दोनों की डील है, हमें पता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट जो है ना उसका एक करंट अकाउंट है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि गवर्नमेंट का एक करंट अकाउंट होता है आरबीआई के पास। तो वहां पे क्या होती है, डीलिंग्स होती है। डील कैसे हो रही है, गवर्नमेंट को पता है कि अगर उसे कोई भी क्राइसिस है ना, देयर इज वन पर्सन बिहाइंड दैट गवर्नमेंट जो उसे किसी भी क्राइसिस में ऑलवेज हेल्प करेगा ही करेगा, राइट? दैट इज आरबीआई। अब गवर्नमेंट को पता है आई एम फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग, कि मेरे पास पैसों की कमी पड़ रही है, मेरी जो इकोनॉमी है वहां पे मनी सप्लाई इतना सफिशिएंट नहीं है, मेरे खर्चे ज्यादा हो गए और मेरे पास इतना पैसा नहीं आया। तो इन दैट केस आरबीआई को अप्रोच किया जाता है। आरबीआई को ये बोला जाता है प्लीज मोनेटाइज माय डेट्स, प्लीज मोनेटाइज माय डेट्स, मींस मेरे जितनी भी उधार, जितनी भी पेमेंट्स है उनके लिए मुझे मनी प्रोवाइड करो। अब वो काम फ्री में नहीं होता, तो उसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, अपनी सिक्योरिटीज आरबीआई को देनी पड़ती है। लेकिन आरबीआई लायबल है, हु इज एंटरिंग नाउ, नाउ आरबीआई जो है वो लायबल है कि वो पूरा इक्वल अमाउंट जितने की भी सिक्योरिटीज गवर्नमेंट ने दी है उसके इक्वल अमाउंट की करेंसी जो है वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेगी। अब दोनों के केस में लायबिलिटी है, दोनों पे कर रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन एक की मॉनेटरी है, दूसरे की नॉन मॉनेटरी है। ये मनी टर्म्स में दे रही है, ये मनी टर्म्स में नहीं दे रही, ये सिर्फ रिजर्व्स की फॉर्म में दे रही है। ठीक है, सो दिस होल प्रोसेस इज नोन एज monetizing the debts of the government. क्लियर है बच्चों? यस मैम। Yes, ma'am. क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट है बेटा? आई कैन रिपीट द टॉपिक, आई विल नॉट माइंड टू रिपीट द पॉइंट अगेन। कोई डाउट है तो मुझे अभी बता दो। एक्सक्यूज मी मैम। यस इशिका बोलो। मैम इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी लिखवा देना प्लीज। हाँ हाँ, वो मैं सब लिखवा दूंगी, डोंट वरी। मेन है कि पॉइंट को अंडरस्टैंड करो कि इश्यू ऑफ करेंसी का पॉइंट एक्चुअली है क्या। यस मैम, ये पेपर में भी आया था। क्या क्या आया था पेपर में? ये व्हाट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग और उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, और आल्सो एक और था कि ये कौन से बजट के अंडर ना वो होता है। हाँ, ये तो बेटा गवर्नमेंट बजट का टॉपिक है। जो तुम डेफिसिट फाइनेंसिंग की यस बात कर मैम। रहे हो ना, हाँ, उसमें रेवेन्यू ओके डेफिसिट, ओके, यस मैम। दैट इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट, नॉट बैंकिंग बेटा। बैंकिंग में सिर्फ ये कहते हैं यस कि मैम। तो बोला जाता है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली मॉनेटाइजिंग द गवर्नमेंट्स डेट, जहां पे हम लोग, दिस इज द कन्वर्जन प्रोसेस ऑफ डेट्स। अब क्या कन्वर्जन प्रोसेस है, एक नॉन मॉनेटरी दे रहा है और एक मॉनेटरी दे रहा है, दैट्स इट। अब आरबीआई को हमने सोल अथॉरिटी क्यों बोला है, मींस व्हाई आरबीआई इज कंसिडर्ड एज द सोल अथॉरिटी ऑफ बैंक ऑफ इश्यू। क्यों बोलते हैं बच्चों आरबीआई को सोल अथॉरिटी? मैम क्योंकि आपके पास राइट है अच्छा, हमने आरबीआई करेंसी। को
नहीं, हमने आरबीआई को क्यों बोला है कि भाई नोट्स को इशू करो, क्यों, ऐसा क्यों? देखो, we have some points कि why RBI is the sole authority. सबसे पहले अगर हमने किसी एक को सिस्टम प्रोवाइड किया हुआ है, इश्यू ऑफ फाइनेंसिंग का सिस्टम, करेंसी का किसी एक को प्रोवाइड किया हुआ है, उससे क्या आती है बच्चों? यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी आती है ना। अब मैं तुम्हें कहती हूँ कि तुम इकोनॉमिक्स क्या करो, 4 ट्यूशंस में इकोनॉमिक्स पढ़ो, मुझसे भी पढ़ो, 3 और टीचर से भी पढ़ो, मे बी चारों के चार एक जैसा टॉपिक ही समझाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई वेरिएशंस आएंगे ही आएंगे, है ना। तो वो वेरिएशंस यूनिफॉर्म बेसिकली नहीं होंगे, क्योंकि अगर तुम सिर्फ एक ही टीचर से पढ़ोगे तो यू नो दैट कि एक यूनिफॉर्मिटी चल रही है, टीचर जो पढ़ा रही है हमें वो एक यूनिफॉर्म लेवल है, कोई वेरिएशंस नहीं है। कई बार क्या होता है, किसी टीचर का समझ आएगा, कई बार नहीं आएगा। सो बेसिकली इसीलिए आरबीआई जो है ना, उसे भी सोल अथॉरिटी बोला गया, क्यों? ताकि ये करेंसी में यूनिफॉर्मिटी मेंटेन कर सके, राइट। क्लियर है बच्चों? फर्स्ट पॉइंट, यूनिफॉर्मिटी सब समझते हो ना, एक जैसा स्कूल की यूनिफॉर्म होती है, क्यों होती है? ताकि तुम सब एक जैसे लोगो स्कूल में। सो दिस इज यूनिफॉर्म, देयर इज नो वेरिएशन फॉर एनी डिनोमिनेशन, हर टाइप का नोट सेम आएगा, आरबीआई को अथॉरिटी है। क्लियर फर्स्ट पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Second point is it builds faith of the consumer. हर किसी को फेथ है, हर किसी को पता है भाई आरबीआई जो है करेंसी इशू करती है, तो हर किसी का फेथ आरबीआई पे बना हुआ है। थर्ड पॉइंट इज आरबीआई थ्रू, मतलब जो आरबीआई फंक्शन करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, उसको मनी सप्लाई को रेगुलेट कर सकती है थ्रू आरबीआई। सो गवर्नमेंट कैन रेगुलेट मनी सप्लाई थ्रू आरबीआई। तो ये कुछ 3 मेजर पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से आरबीआई को सोल अथॉरिटी बोला गया है, कि एक तो ये यूनिफॉर्म है, एक इसने कंज्यूमर का ट्रस्ट बिल्ड किया हुआ है। थर्ड पॉइंट इज कि जो गवर्नमेंट है वो फंक्शन कर सकती है प्रॉपर, वो रेगुलेट कर सकती है मनी सप्लाई को, क्योंकि उसे भी पता है कि आरबीआई जो है वो प्रोड्यूसर है हमारी इकोनॉमी में, जो कि पैसा प्रोड्यूस कर रही है, और मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सकता है। अब मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल किया जाता है वो आगे पढ़ेंगे, कैसे हम मनी को बढ़ा भी सकते हैं, मनी को कम भी कर सकते हैं। तो ये फंक्शन भी आरबीआई परफॉर्म करती है, एज वेल एज गवर्नमेंट भी परफॉर्म करती है, दोनों करते हैं, लेकिन दोनों के टूल्स अलग अलग है। वो फर्दर आएगा इस चैप्टर में, ये तो आगे तुम्हारे पास गवर्नमेंट बजट में ही आएगा वो सब कुछ, राइट। तो यहाँ तक क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. कोई पॉइंट रिपीट करना है? यस प्लीज, चले आगे। Yes, ma'am. Now this function of RBI is over. सेकेंड फंक्शन क्या लिखवाया था, उसी सीक्वेंस में चलते हैं। बैंकर्स बैंक Bankers या to government. banker to government? Okay. See, as a banker to the government, जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट का क्या है, एक बैंक है, तो वो फॉलोइंग फंक्शंस को परफॉर्म करता है। कैरिंग आउट ऑल फाइनेंशियल बिजनेस ट्रांजैक्शंस, और हम ये भी कह सकते हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, granting loans, managing public debts,
advisor, and the last is agent. ठीक है, as a banker to the government, RBI performs the following functions. Just read them. Who again? Read the. Akshay, you're back. Navneet नहीं है ना? ठीक है, तो एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट आरबीआई कैरी करता है सारी बैंकिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, लोन्स ग्रांट करता है, मैनेज करता है पब्लिक डेट्स को, एडवाइजर है और एजेंट है. पढ़ लिया? नाउ द फर्स्ट इज कैरिंग ऑल फाइनेंशियल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स. मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि गवर्नमेंट का आरबीआई के पास एक करंट अकाउंट है जहां पे गवर्नमेंट का सारा कैश बैलेंस होता है. अब गवर्नमेंट ने आरबीआई के पास करंट अकाउंट खोला हुआ है, तो जिसकी वजह से जितनी भी बैंकिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती है वो आरबीआई करती है गवर्नमेंट के लिए. यहाँ पे उसके रिसीट्स, पेमेंट्स, कोई भी रेमिटेंस, रेमिटेंस समझते हैं ना, कुछ पैसा या देना, तो वो सारे के सारे का रिकॉर्ड कौन रखता है? आरबीआई. क्यों? क्योंकि आरबीआई के पास गवर्नमेंट का एक करंट अकाउंट है जिसमें कैश बैलेंसेस मेंटेन है. जो भी रिसीट्स, पेमेंट्स, डिपॉजिट्स एंड योर रेमिटेंसेस, वो सब कुछ यहाँ पे आरबीआई मेंटेन करती है. सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट, कैरिंग ऑल फाइनेंशियल एंड बैंकिंग ट्रांजैक्शंस विद आरबीआई. क्लियर है बच्चों फर्स्ट पॉइंट? मैम रिपीट. हाँ, सांचे देखो, गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, आरबीआई के पास एक करंट अकाउंट रखा हुआ है. अब सेविंग अकाउंट नहीं है, करंट अकाउंट है, क्योंकि गवर्नमेंट की भी ट्रांजैक्शंस बहुत होती हैं, इसीलिए गवर्नमेंट ने आरबीआई के पास एक करंट अकाउंट है. अब आरबीआई क्या करती है, इस करंट अकाउंट में गवर्नमेंट का कैश बैलेंस मेंटेन है. तो आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पे जितना भी गवर्नमेंट के चाहे रिसीट्स हैं, डिपॉजिट्स हैं, कोई भी पेमेंट करनी है या कोई रेमिटेंस है, वो सारा का सारा कौन डील करता है? आरबीआई. राइट? फॉर गवर्नमेंट. किसके लिए करती है? गवर्नमेंट के लिए. क्लियर है बेटा? दोबारा बताओ. क्लियर है मैम. अब देखो सांची, सिंपल सी बात है, तुम गवर्नमेंट हो, मैं आरबीआई हूँ, तुम्हारा मेरे पास अकाउंट है. तुमने कहा कि भाई अभी आपने ही देखना है, जो भी सब कुछ है मुझे नहीं पता, बस मेरा एक करंट अकाउंट खोलो, सारे बैलेंसेस आपके पास मेंटेन है, आपने ही देखना है कब किससे पैसा लेना है, कब किसको पैसा देना है. ठीक है? तो ये अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन है सारी की सारी, वो कौन करता है? आरबीआई करता है गवर्नमेंट के लिए. क्यों करता है? क्योंकि गवर्नमेंट ने आरबीआई के पास अपना एक करंट अकाउंट ओपन किया हुआ है. क्लियर बेटा? यस मैम. ओके, नेक्स्ट पॉइंट था ग्रांटिंग लोन्स. अभी हमने पढ़ा डेफिसिट फाइनेंसिंग वाला पॉइंट. ग्रांटिंग लोन्स का मतलब है कि गवर्नमेंट कभी भी शॉर्ट टर्म लोन ले सकती है आरबीआई से. सेकेंड पॉइंट वाज ग्रांटिंग लोन्स. सो गवर्नमेंट क्या करती है, किसी भी टाइप के शॉर्ट टर्म लोन के लिए आरबीआई को अप्रोच करती है. ठीक है? और अभी हमने पढ़ा था कि आरबीआई की मॉनेटरी लायबिलिटी है कि गवर्नमेंट को पैसा देना ही पड़ेगा, और गवर्नमेंट की नॉन मॉनेटरी है. तो ये जो शॉर्ट टर्म लोन होते हैं, ये किसी भी सिक्योरिटीज के बेसिस पे होते हैं. कोई बिल हो गया, राइट, बिल ऑफ एक्सचेंज मींस बीआरबीपी, और वी कैन से एनी काइंड ऑफ रिजर्व्स. तो आरबीआई क्या करती है, गवर्नमेंट को ये लोन्स प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट को उसके क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकालती है. इन रिटर्न गवर्नमेंट जो है वो आरबीआई को सिक्योरिटीज या फिर कोई लिक्विड एसेट्स किसी भी फॉर्म में प्रोवाइड करती है.
क्लियर? यस प्लीज, क्लियर है बच्चों? Yes, Yes, ma'am. ठीक है, अब बाकी के ना नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज सेम आईडी पे देयर इज अनदर क्लास. बाय बच्चों. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. ओके बेटा, बाय. बाय बच्चों.